Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I'm taking the lecture number 21 of Material Science and Metallurgy. Right. So, in the previous series of the lecture, we tried to discuss about the another new chapter of the Material Science and Metallurgy, which is the crystal structures and the crystal imperfections. Right. So, as per our last discussions, we discussed a few of the things about the crystals and the structure of the crystal, how the structure of the crystals is looking, and what is the detailed analysis of the structures, right? How we can define the unit cell, how we can define the lattice, and how we can define the basis of the structures. Now, different types of, we also discussed the different crystal structures during the previous lecture. So we just recap the few of the things which we will discuss in the last series of the lecture. So here we can start the discussions with the unit cell. So just in the 5 or 10 minutes, we just recap all the things whatever they discussed in the last series of the lecture. So first, the unit cell is the smallest geometrical volume, right, in a space lattice, which is defined by the three basis vector on which the translations along the three basis vector directions yield the complete crystal structures on the space lattice itself. So the crystal structure, which is the combinations of the two of things, the first, which is the lattice, and lattice plus the basis. Now to understand the to create the basic understanding about the crystal structure, we have to first start the discussions on the lattice and what is the meaning of the basis. So here we can start the discussions on the lattice. So an infinite periodic array of the points in a space which is defined as a lattice. अब lattice किसको बोल सकते हैं? एक स्पेस के अंदर जो एक पीरियोडिक मैनर से जो पॉइंट्स जो है वो आपको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि और सही तरीके से बोलने की कोशिश करें तो फिर उस तरीके से अरेंज हुए हैं एक स्पेस के अंदर, एक पीरियोडिक मैनर के अंदर अगर पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, right, then it is called as a defined as a lattice arrangements. Now what is a basis or called as a motif? So which is the a group of one of the more atoms. यानी ये जो motif है यानी basis है वो एक और एक से ज़्यादा जो है वो एटम्स का ग्रुप है विच इज़ लोकेटेड इन द पर्टिकुलर वे. वो एक पर्टिकुलर वे में जैसे लैटिस अरेंज हुआ उसी तरीके से जो है वो बेसिस भी अरेंज हुए होते हैं. वे विद द रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड एसोसिएटेड विद each point which is known as a motif or the basis. So we start the discussions on the crystal structure. The crystal structure is a combination of the lattice plus the basis. So you can see in the above way. So we can obtain the crystal structure by adding the lattice and the basis. So we can say that when an atoms or the identical group of the atoms is attached to every lattice point, we can obtain a crystal structure. So the crystal are classified in the two basic category, the polycrystals and the single crystals. If the arrangement of the crystals are not periodically, then which is called as a polycrystal, and if the arrangement of the crystal which is periodically, then it is called as a single crystal. Now the unit cell is itself, it is the arrangement, it is the atoms or a group of the atoms which is forming by building the block of a smallest acceptable size of the whole volume of the crystal is defined as a unit cell. यानी आपके पास पूरा एक क्रिस्टल्स हैं, उसमें से सपोज आप देख लीजिए कि आपके पास 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, उसमें से आप 10 सेंटीमीटर का सपोज आपके पास एक क्यूब है, उसमें से आप जो है वो एक कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर यानी एक क्यूब जो है वो निकाल लेंगे. दैट इज कॉल्ड एज ए यूनिट सेल. सो ये जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 3 डायमेंशंस के अंदर एक पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है. उसमें से एक जो है वो आपने एक यूनिट सेल जो है वो
सपोज आपने मार्क कर दिया, अलग रख दिया, दैट इज कॉल्ड एज ए यूनिट सेल। यूनिट, सारे यूनिट सेल को मिला के एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। और यूनिट सेल किस तरीके से बनता है? यूनिट सेल जो है वो बनता है लैटिस पॉइंट्स के अरेंजमेंट से। सो बेसिकली हमारे पास जो रहता है वो जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो एक तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर रहते हैं, और फेस क्यूबिक सेंटर स्ट्रक्चर्स रहता है। और उसी हिसाब से जो है वो उसके नाम के हिसाब से उसमें उसके एटम्स के जो है वो अरेंजमेंट हुए होते हैं, राइट। आप ये चीज़ हमने काफ़ी पहले भी इसको डिस्कस करने की कोशिश की थी। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर आप देख लीजिए कि बॉडी के जो है वो सेंटर में एक आपको मिलेगा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर आपको दिखेगा कि उसके सारे फेस के ऊपर एक एक एटम्स का अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, राइट। इसी तरह से उसका जो एटॉमिक अरेंजमेंट है उसका काउंट वहाँ पे होता है। अब इसके साथ हमें ये चीज़ भी डिस्कस करनी पड़ेगी कि देयर इज़ 7 यूनिक अरेंजमेंट ऑफ द नॉन क्रिस्टल सिस्टम। एक क्रिस्टल सिस्टम जो रहता है ना उसमें से एक डिफरेंट 7 काइंड ऑफ द यूनिक अरेंजमेंट्स रहती है। यानी आपका देख लीजिए कि आपका सिंपल क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया, रोम्बोहेड्रल हो गया, मोनिक्लिनिक हो गया, ट्रिक्लिनिक हो गया एंड हेक्सागोनल। ये जो 7 टाइप्स ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम जो है वो रहते हैं और उसके हिसाब से उसके डायमेंशंस जो है वो स्पेस वहाँ पे यूटिलाइज होते हैं। आप देख लीजिए 1 बाय 1 हमने यही चीज़ जो है लास्ट में डिस्कस की थी कि क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर डिस्कशन करें तो क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के अंदर बेसिक जो है वो इस तरीके के क्यूबिक स्ट्रक्चर्स जो रहते हैं। ये चीज़ हमें डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक तो हमने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, फिर BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, देन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, और उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर किसी को मिला है तो वो चीज़ है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में क्या चीज़ होती है? तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर हेक्सागोनल जो है विच इज़ कॉल्ड एज HCP विच इज़ दी हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट स्ट्रक्चर्स। तो इसमें से आप देखोगे तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स के अंदर जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो किस तरीके से हुई होती है। तो आप देख लीजिए कि हेक्सागोन के जो 6 फेसेस हो गई, राइट। अब उस 6 फेसेस के टॉप वाले 6 लैटिस पॉइंट के ऊपर एक एक एटम्स अरेंजमेंट है। इसी तरीके से टॉप, जैसे टॉप में 6 फेस के ऊपर एटॉमिक अरेंजमेंट है, इसी तरीके से बॉटम के 6 फेसेस के ऊपर एटॉमिक अरेंजमेंट है। एक जो है वो दोनों के सेंटर यानी टॉप का सेंटर और बॉटम का, अगर आपको उसको आप उसको ज्वाइंट करके तो जो इसका जो सेंटर बनता है तो एक अरेंजमेंट जो है इसका सेंटर में है और एक अरेंजमेंट जो है, अब इसी के आप प्रोजेक्शंस खींचोगे। सपोज आपने उसके प्रोजेक्शंस खींचे तो प्रोजेक्शंस आप खींचोगे तो उस बीच में एक जो ट्रायंगल बनता है उस ट्रायंगल के ऊपर जो है वो एटॉमिक अरेंजमेंट हुआ होता है, राइट। तो इस तरीके से उसके अंदर आपको 6 एटम्स आर इनसाइड द यूनिट सेल, राइट। इस तरीके से आपको वहाँ पे एटम्स दिखेंगे। नाउ अब लास्ट में हमने जो लास्ट लेक्चर कंडक्ट किया था वो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने ब्रेविस लेटिस आपको बताया था, राइट। अब आई थिंक ये चीज़ आप अवेयर ही है ब्रेविस लेटिस। आई थिंक जो आपको अगर याद होगा ये चीज़ लास्ट में हमने जो डिस्कस किया था थोड़ा याद करने की कोशिश करिएगा तो आपको ये चीज़ जो है वो पता चलेगा कि ब्रेविस लेटिस होता क्या है, राइट। सो बेसिकली इसका जो मैं आपको इंट्रोडक्शंस बताऊँ तो ये जो है वो एक साइंटिस्ट थे एम ए ब्रेविस, जो उन्होंने 1850 के अंदर जो है वो आइडेंटिकल पॉइंट्स को अरेंज करके एक स्पेसिस लेटिस के अंदर जो है 14 टाइप्स ऑफ द रेगुलर पैटर्न्स बनाई थी। अब वो आगे जाके 14 जो स्पेस लैटिस जो है वो आगे जाके वो उनके नाम से ब्रेविस लैटिस के नाम से आगे जाके पहचानी गई। ईच पॉइंट इन अ लैटिस विच इज कॉल्ड एज अ लैटिस पॉइंट और ए लैटिस साइट। ईच पॉइंट in a crystal lattice which is represent the one constituent particle which may be an atoms and molecules or an ion.
A lattice points are joined by a straight line to bring out the geometry of the lattice. यानी इसमें जितने भी points है which is points which is one type of the atoms, वो atoms को अब line से हम लोग जब arrange करेंगे तो एक पूरा एक geometry बनेगा. अब वो पूरा geometry है, वो geometry of lattice जो है वो पहचाना जाता है और उसको हम लोग ब्रेविस लैटिस के नाम से पहचानते हैं. अब इसके अंदर 14 जो है वो उन्होंने ब्रेविस ने 14 अलग अलग जो है वो क्रिस्टल सिस्टम जो है वो डेवलप की थी. ये सिस्टम अभी हमने आपको पहले भी दिखाई थी. जैसे आपका क्यूबिक हो गया, क्यूबिक के अंदर जैसे एटम्स के अरेंजमेंट्स होते हैं, राइट. बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर आप देख लीजिए कि बॉडी के सेंटर में क्यूबिक रहता है. फेस सेंटर क्यूबिक के आप देख लिए तो उसके कितने फेसेस होते हैं, टोटल 6 फेसेस होते हैं, राइट. तो चारों कॉर्नर पे तो है ही, और साथ में उसके बीच वाला जो सेंटर रहता है उस सेंटर में भी वहाँ पे आपको अरेंजमेंट दिखेगा. देन टेट्रागोनल हो गया. तो टेट्रागोनल के अंदर किस तरीके से अरेंजमेंट, टेट्रागोनल जो है वो एक शेप है, राइट. उस टेट्रागोनल के अंदर जो है वो बीसीसी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आप किस मेटल में आप देख सकते हैं. तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो है बेसिकली आपको, जैसे वाइट टीन हो गया ना, टीन वाला जो मेटल है उसके अंदर इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स है वो आपको दिख रहे होते हैं, राइट. देन आपका इसके बाद हो गया ऑर्थोहम्बिक्स, राइट. ऑर्थोहम्बिक्स जो है उसका बेसिक प्रिमिटिव क्यूबिक स्ट्रक्चर रहता है. उसके बाद जो है उसका बीसीसी उसमें डेवलप होता है, फिर एफसीसी डेवलप होता है, राइट, और एंड सेंटर्स होता है. तो इस तरीके के जो है वो आपको स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको रोम्बिक सल्फर से अंदर जो है वो दिख जाते हैं. देन द मोनोक्लिनिक की अगर बात करें तो मोनोक्लिनिक के अंदर जो है वो एक वो उसका प्रिमिटिव बेसिक स्ट्रक्चर्स रहता है और उसके साथ जो एंड सेंटर्स स्ट्रक्चर्स रहता है. तो मोनोक्लिनिक सल्फर जो है वो सल्फर के अंदर इस तरीके के जो है वो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर्स जो है वो दिखाई पड़ते हैं. देन द ट्राइक्लिनिक, तो ट्राइक्लिनिक के अंदर आप देख लीजिए तो इसके अंदर बेसिकली एक थोड़ा सा एक ट्राइंगुलर जो है वो क्यूब को जो क्यूब है वो थोड़ा ट्राइंगुलर हो जाता है. उस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको वहाँ पे दिखते हैं. नेक्स्ट विच इज़ दी हेक्सागोनल. तो हेक्सागोनल के अंदर आप देख लीजिए कि ग्रेफाइट के अंदर जो है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखता होता है, राइट. अब इसके बाद जो है जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो ये हो जाएगी कि हेक्सागोनल के अंदर जो है वो ग्रेफाइट के अंदर जो है वो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी, राइट. अभी जो हमने जैसे लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने बीसीसी एफसीसी सिंपल क्यूबिक के बाद जो आपको हेक्सागोनल बताया, तो हेक्सागोनल में सेम स्टेज, हेक्सागोनल के जो सारे फेसेस के ऊपर थे तो फेसेस के ऊपर एक एटॉमिक अरेंजमेंट, उसके सेंटर में एक सेम जो टॉप में था वही चीज़ है बॉटम में. और अगर आप देखिए कि इसके सारे के प्रोजेक्शंस खींचे तो सारे के प्रोजेक्शन खींच के बीच में जो एक ट्राइंगल बनता है उस ट्राइंगल के ऊपर जो है वो इस तरीके से वहाँ पे जो है वो एटॉमिक अरेंजमेंट्स वहाँ पे बनती है, राइट. देन इट इज़ दी रोम्बोहेड्रल्स. तो इस तरीके से अरेंजमेंट्स होती है. अब लास्ट चीज़ जो हमने इतना तक तो हमने डिस्कस किया था, तो अब एटॉमिक पैकिंग फैक्टर्स जो है वो मुझे आपको समझाने से पहले इतना चीज़ आपको थोड़ा रिकेप करवाने की ज़रूरत थी. अब एटॉमिक पैकिंग फैक्टर्स जो है वो होता क्या है, राइट. अब उससे पहले लास्ट हमने जो है वो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर्स जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है वो आपको मैंने बताया था. सपोज़ आप देख लीजिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर्स जो है वो किस तरीके से डिफाइन करता है. तो एक वहाँ पे कंडीशंस जो है वो ये आपको एजम्पशंस के साथ जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है कि आप जिस बॉडी के अंदर जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर्स जो है वो आप कैलकुलेट कर रहे हैं विच इज़ सम ऑफ दी हार्ड स्पीयर्स, राइट, सॉरी, विच इज़ सम ऑफ दी हार्ड स्पीयर्स, जो है वो एक हार्ड स्पीयर है. सो we can identify the atomic packing factors is just like a way that so the volume of the atoms in the unit cell, right. आपके पास सपोज एक जो है वो एक क्यूब है, तो इस क्यूब के अंदर क्यूब जो है क्यूब के अंदर वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, तो एक क्यूब के अंदर से आपने 1 by 1 1 into 1 यानी एक
स्पीयर जो है उतना यूनिट सेल आपने वहाँ से निकाल दिया, तो उसका वॉल्यूम कितना है, राइट। अब आपको उससे किसको डिवाइड करना है, यानी उसके अंदर एक यूनिट सेल के अंदर जो एक एटम रहता है ना, उसका वॉल्यूम कितना है। एक एटम बना होगा ना, राइट। एक एटम का वॉल्यूम डिवाइड बाय यूनिट सेल का एक एटम का वॉल्यूम डिवाइड बाय द होल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब ये चीज़ आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको जो है वो आपको एटॉमिक पैकिंग फैक्टर जो है वो आपको मिल जाएगा। सपोज आपके पास यहाँ पे आप देख लीजिए एक क्लोज पैक डायरेक्शंस का आपको एक सिंपल एक क्यूबिक स्ट्रक्चर्स जो है आपको दिखाई पड़ता है। इसमें आप देख लीजिए कि इसके अंदर जो है वो बेसिकली कितने एटम्स हो गए, तो इसके अंदर बेसिकली जो है वो 8 एटम्स जो है वो आपको दिखाई पड़ेंगे, राइट। जिस तरीके से अरेंज हुए हैं उस तरीके से। तो इंटू 1/8 करेंगे तो आपको 1 एटम पर यूनिट सेल जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा, राइट। अब एटम्स अपॉन दी यूनिट सेल, तो एक एटम्स रहता है इस एक जो पूरे के अंदर 8 है, राइट। पर आपको तो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम्स चाहिए विच इज़ द 1 इनटू आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसका वॉल्यूम का जो है वो इक्वेशंस बन जाएगा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब विच इज़ द 0.5 एरिया क्यूब विच इज़ द वॉल्यूम ऑफ द एटम्स, राइट। 1 है उसके साथ उसका वॉल्यूम है अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, द होल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल विच इज़ द ए क्यूब। सो द एटॉमिक फैक्टर ऑफ द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स विच इज़ द 0.52। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड फॉर द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स। तो आप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के अंदर अरेंजमेंट कैसे होती है कि एक बॉडी के अंदर सेंटर में जो है वो एक क्यूबिक अरेंजमेंट जो है वो हुई होती है, राइट। सारे कॉर्नर्स पे है और एक जो है वो क्यूब के सेंटर में अरेंज जो है वो एटम्स जो है वो अरेंज हुआ होता है। सो द कोऑर्डिनेशंस नंबर जो है वो कितने होते हैं, तो आप देख लीजिए कोऑर्डिनेशंस नंबर है 4 और 4 8 विच इज़ द नियरेस्ट नेबर्स, वो एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक है। सो द एटॉमिक फैक्टर्स एटॉमिक पैकिंग फैक्टर्स ऑफ द BCC विच इज़ दी आप यहाँ पे एक एडेप्टेड जो है वो एक फिगर उसका देख सकते हैं। तो क्लोज्ड पैक डायरेक्शंस विच इज़ द लेंथ इज़ 4r, राइट, विच इज़ द अंडर रूट के अंदर 3a एरिया उसका आइडेंटिफाई हुआ। सो द यूनिट सेल विच इज़ कंटेन द 1 + 8 इंटू 1/8, राइट। यूनिट सेल कितने बन जाएंगे कि एक जो है वो सेंटर के अंदर है वो एक प्लस कॉर्नर वाले इंटू 1/8, क्योंकि वो तो सारे कॉर्नर के ऊपर बन रहे हैं। सो वो एक दूसरे से नियरेस्ट नेबर है, तो 1/8 उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसी तरीके से 2 एटम्स जो है वो आपको यूनिट सेल के अंदर मिलेंगे। अब इसका BCC का जो है वो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर्स जो है वो आपको किस तरीके से मिलेगा, तो 2 एटम्स इनटू द एरिया ऑफ द यूनिट सेल विच इज़ द 4/3 पाई अंडर रूट के अंदर 3a/4 क्यूब अपॉन एरिया क्यूब विच इज़ दी, सो पाई इंटू अंडर 3/8 विच इज़ दी, यानी सारे जो है वो क्रॉस हो जाएंगे ना, तो आपको कितना मिलेगा पाई इंटू अंडर रूट 3/8, सो विच इज़ द 0.68 विच इज़ द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर्स ऑफ द BCC स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो 2 चीज़ क्या है, एक आपको क्लोज पैक डायरेक्शंस जो है वो किस तरीके से उसका एरिया जो है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, और इसके अंदर जो है यूनिट सेल के अंदर जो है वो कितने बेसिक्स एटम्स होते हैं वो आपको जो आइडेंटिफाई करना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ पे बन जाती है। नाउ द फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर अरेंजमेंट किस तरीके से होती है, द एटम्स आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ ईच क्यूब स्पेस ऑफ द सेल, यानी इसके अंदर जो है वो एटॉमिक अरेंजमेंट जो है वो इस तरह से हुई है कि
सारे कॉर्नर्स के ऊपर एक है और सारे जो फेसेस है, फेस कितने बनते हैं क्यूब के अंदर, 6 फेसेस बनते हैं, तो क्यूब के 6 फेसेस के सेंटर में जो है वो आपको वहाँ पे एक जो है वो एटम्स मिलेगा. सो द एटम्स आर assumes टू टच along द फेस डायगोनल्स, राइट. सो इसको पहले जो है वो आइडेंटिफाई करने पड़ेगा. कोऑर्डिनेशंस कितने बनते हैं, तो आप तो पहले कोऑर्डिनेशंस में आप देख लीजिए कि कॉर्नर के ऊपर 8 है, राइट. सो 8 तो ऑलरेडी बन गए. और फेसेस कितनी बनेगी आपकी, 1 2 3 4, 4 फेसेस के ऊपर जो है वो आपको मिलेंगे. तो 8 और 4 कितने हो गए, 12. तो अब इसके जो है वो किस तरीके से जो है वो हम लोग एटॉमिक फैक्टर जो है वो एफसीसी के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अगर एफसीसी के लिए एटॉमिक पैकिंग फैक्टर्स जो है वो हम लोग आइडेंटिफाई करें, तो यहाँ पे जो है वो आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो है वो आपका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर्स का जो डायरेक्शंस है वो किस तरीके से उसका जो वॉल्यूम है वो किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यानी एक फेस के ऊपर 4 है, उसका आप 4 का रेडियस कर लीजिए, राइट, विच इज़ दी अंडर रूट इंटू 2a, राइट. अंडर रूट के अंदर 2 इंटू एरिया ऑफ a. सो a unit cell which is contain 6 atoms into 1 by 2 plus 8 into 1 by 2, that is 4 atoms per unit cell. अब ये किस तरीके से हुआ है ये आपको पता चलना चाहिए. So unit cell which is contains a 6 into 1 by 2. आप उसका एरिया नीचे से देखिए तो एरिया किस तरीके से वो आइडेंटिफाई होगा. सो देयर इज अ 4 atoms at the face, right, and there is a 6 face. So 6 is the faces of the 6 जो हमें लिया है वो किसका लिया है, फेसेस का, इंटू 1/8. एक फेस जो है वो दूसरे फेस के साथ अटैच है, प्लस एक फेस के ऊपर जो है जो सारे फेसेस के ऊपर 8 एटम्स है इंटू 1/8. सो देयर इज अ 4 एटम्स पर यूनिट सेल. सो 4 इंटू 4/3 पाई इंटू अंडर रूट के अंदर 2a/4 क्यूब अपॉन एरिया क्यूब, दैट इज द a क्यूब. So which is solved as a, the atomic packing factor is of the abscissa, which is the pi divided by 3 into under root 2, which is the 0.74. Now the last important atomic packing factor structure, which is the SCP, which is the hexagonal close packed structures. तो इसमें भी आपको ये चीज़ पता ही है कि किस तरीके से उसका एटॉमिक अरेंजमेंट जो है वो हुआ होता है. तो आप देख लीजिए कि 6 फेसेस के ऊपर है, एक सेंटर के ऊपर है. इसी तरीके से सेम रेप्लिकेशन से वो आपको कहाँ पे दिखेगा, टॉप विच इज़ सेम एज ए बॉटम, और बीच में जो है वो 3 एटम्स जो है वो जो ट्रायंगुलर जो प्रोजेक्शन खींच के बनते हैं वो है. सो आइडेंटिकली जो है, सो द CA which is the area which is the 1.633 for the close packing factors. Now in most details the closed packed ratio is derived from the valid datas. So here you can see in the 3D projections and here you can see in the 2D projections, there is a top layer, there is a middle layers and there is a bottom layers जो है वो आपको दिख रहा है. सो तो कोऑर्डिनेशंस कितने हुए, 12, 6 into 6 12. सो द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर विच इज़ दी 0.74. यानी आप 3D में आप इमेज करिए तो 3D के अंदर जो है वो टॉप का आपको ये साइड दिख रहा है, राइट. बी विच इज़ दी 3 atoms arrangement which is we can get from the projections of the top and bottoms atoms, and last which is the dark green which is designated as a bottom layers. So the coordinations point are the 12. So the atomic packing factor which is the 0.74 for the HCP structure
for an identical ratio of 1.633. So a closed pack structures are, as discussed, based on the, there is 6 atoms on the top layer, bottom 3 and 6 on the बॉटम स्ट्रक्चर. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सेकंड इमेज है ना, वो 6 इसके बीच 3, 6 इसके बीच 3, 6 इसके बीच 3, 6 इसके बीच, इस तरीके से पूरा जो है वो एटॉमिक अरेंजमेंट जो है वो जो है अरेंज होते हैं. आप टॉप का सेंटर लीजिए, वो जो है वहाँ से आप जैसे ही क्रॉस सेक्शन खींचेंगे तो वो दैट क्रॉस सेक्शन विच इज सेम लाइक द बॉटम which is very parallel to the bottom centers. So इस तरीके से जो है वो क्यूबिक अरेंजमेंट जो है वहाँ पे हुआ होता है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द क्लोज पैक्स क्रिस्टल्स जो है वो इस तरीके से अरेंज हुए होते हैं, राइट. प्लेन ए, उसके बाद प्लेन बी, फिर सी रहता है, फिर ए होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है. इस तरीके से जो है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर जो है वो अरेंजमेंट जो है वो हुई होती है. नाउ द एग्जाम्पल ऑफ द एलिमेंट विद द क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स. सो ये चीज़ आपको वहाँ पे दिख रही है कि बेसिक क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के अंदर कैसा होता है. देन बीसीसी के अंदर जो है वो आप बेसिक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर द एन, राइट, नंबर ऑफ एटम्स विच इज़ द 1. देन बीसीसी के अंदर आप एन दैट इज़ द 2. देन एफसीसी और सीसीपी के अंदर आप देख लीजिए एन द नंबर ऑफ एटॉमिक फैक्टर्स विच इज़ द यूनिट पर यूनिट सेल विच इज़ द 4. एंड इन डीसी विच द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर विच इज़ द सी विच इज़ द डायमंड्स. सो ये चीज़ जो है वो हमने आज के लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिस्कस की थी. आई होप, आई थिंक सबको ये चीज़ अब समझ में आई होगी. फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूजन्स हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं, या फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी आपके जो डाउट्स होंगे वो सॉल्व कर सकते हैं. अगर फर्स्ट ट्रायल्स के अंदर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये वीडियो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, राइट. तो अब ये जो सारे हैं ना, अब तक के हमने जो 5 चैप्टर देखे ना, वो जो हमने डिस्कस किए थे वो मटेरियल साइंस के बेसिक्स थे. अब हमें मटेरियल साइंस विद द कॉम्बिनेशंस ऑफ द मेटलर्जी साथ में जा रहा है, राइट. हमने मेटलर्जी, बेसिक मेटलर्जी हमने स्टडी कर लिया कि कैसे आप कुछ भी प्रोसेस करते हैं तो उसके मेटल के ऊपर क्या रिएक्शंस, दैट इज़ द बेसिक मेटलर्जी, राइट. अब तो हमने पहले जो चीज़ स्टडी की थी वो क्या थी कि बेसिक मेटलर्जी की इफ़ेक्ट्स क्या रही है. अब हमें जाना है कि मेटल के ऊपर इफ़ेक्ट हमने देख ली, पर अब हमें जाना है कि बेसिक जो मेटल है वो किस तरीके से बना था, उसका स्ट्रक्चर क्या था. अब वहाँ से आप लोग स्टार्ट करेंगे तो फिर वो चीज़ आपको इंटरप्रेट करने में काफ़ी ईजी हो जाएगी. सो एक बार और अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो देख लीजिए. फिर भी समझ में नहीं है तो आप मुझे कभी भी क्वेश्चंस कर सकते हैं. फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स एंड द क्रिस्टल इम्परफेक्शंस. नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग आगे का पॉइंट जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज़ all about the crystal structures and crystals imperfections. This is so, thank you so much for watching this video.